So these are the four directions. So major direction is west, north, and south. These are the major direction. Main direction होता है major. और to find out the midpoint, that is known as the intermediate. Intermediate direction. जो total direction हो जाता है 8. Okay. So see the which monsoon is known as the southwest or which is known as the northeast monsoon. Divide into four parts. East, okay, west, south. So you know very well. Your monsoon start from the this point. That is known as the Madagascar. Okay, this is known as the Madagascar. Okay, sir. Up it is located in intermediate point or where? So see the intermediate point. Okay, intermediate point. So it is not required here. This is the intermediate. So this is known as the northeast, and that is known as the southwest. Southwest. So that's why this monsoon originated from here, Madagascar. यहाँ से start होता है और it is located in intermediate direction. That's why this monsoon is known as the southwest monsoon. इसलिए हम बहुत बार इसको southwest monsoon बोलते हैं. Why this is known as the southwest monsoon? That's why. Okay. और it is known as the onset of monsoon. इसको onset भी कहा जाता है. Onset means the entering inside the India. Also known by the advanced monsoon. इसको advanced monsoon भी कहा जाता है. Okay. और ये जो रिटर्न होता है आफ्टर मंथ ऑफ सितंबर. सितंबर की बात है ना monsoon return. When a monsoon return, क्यों return होता है रीजन बताऊंगा मैं. This is known as the retreating monsoon. जो monsoon return हो रहा है that is known as the retreating monsoon. और this is also known as the northeast monsoon. इसको northeast monsoon भी कहा जाता है. तो there are two types of monsoon given in your geography book. One is southwest and northeast. Okay. Why this return discuss? We are going to discuss. अब you know your concept is clear. Which one known as the southwest or which one known as the northeast? Yes, sir. Okay, बेटा. चलो let's start next point. Tropic of Cancer, equator, okay. Madagascar. So you know in the month of June sun की डायरेक्ट रेज चली जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ओके. तो एयर लो प्रेशर इज क्रिएट. लो प्रेशर हो जाता है यहाँ पे. यहाँ हाई प्रेशर होता है. क्यों होता है? ऑलरेडी लैंड देयर वर द 5 पॉइंट वी विल डिस्कस. हमने डिस्कस किए थे 5 पॉइंट की वजह से मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून. फर्स्ट पॉइंट यू नो difference heating of land and water. First point the different heating and cooling condition of land and water. Second point the Tibetan plateau. Order में नहीं होंगे but मैं point पूरे बोलूंगा. Tibetan plateau also. Okay. Third point the jet stream separated to the northern southern side of Himalaya. Third point जो jet stream है. Fourth point ITC jet zone intertropical convergence zone जो equator होता है separated to the Ganga plains. वो गंगा प्लेन्स पे शिफ्ट हो जाता है. ओके. तो दिस और वन मोर पॉइंट. विच पॉइंट? Distance from sea. वो तो हो गया फर्स्ट पॉइंट. हाई प्रेशर क्रिएटेड ऑन द मेडागास्कर. ये हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है. और यू नो दिस इज द अंटार्कटिका. तो यहाँ पे कोल्ड वाटर जो है इट इज द कोल्ड करंट. तो दैट कोल्ड करंट आल्सो डिक्रीज द टेम्परेचर है. यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होगा इस एरिया का तो प्रेशर हाई हो जाएगा. तो दिस हाई प्रेशर आल्सो पुश द विंड. इनको विंड को पुश करेगा. तो जो विंड चलती है फ्रॉम साउथ वेस्ट
that is known as the onset monsoon. इसको onset monsoon बोलते हैं. ओके, अब this onset monsoon divided into two part. यहाँ पे एक माउंटेन है. ओके, इसमें एक माउंटेन है that is known as the Anaimudi mountain. Here is the one mountain located, Anaimudi mountain. Yeah. Anaimudi mountain divided monsoon winds into two parts. Okay, Anaimudi mountain divided this monsoon wind into two parts. Which monsoon winds? Southwest monsoon. Southwest monsoon divided into two parts. One is known as the Bay of Bengal branch, क्योंकि Bay of Bengal में है बेटा, इस Bay of Bengal से ये flow हो रहा है. So one is known as the Bay of Bengal and another one known as the Arabian Sea. तो two branch में divide हो गए, two stream में. One is the Arabian Sea या Arabian Sea and another one is the Bay of Bengal. Okay, so this area receive the rainfall through the Arabian Sea. ये वाला western coastal area, जो coastal area, this is known as the Western Ghats. तो Western Ghats में जो rainfall होती है वो किससे होती है बेटा? Through the Arabian Sea. अब Western Ghats क्या है? Western Ghats is the higher compared than the eastern parts. जो ईस्टर्न घाट्स है उससे ज्यादा हाइट किसके? वेस्टर्न घाट्स के. तो सपोज ये घाट्स है लाइक दिस, अब ये हायर है, यू नो हाइट ज्यादा है वेस्टर्न घाट्स की, तो जो यू नो अरेबियन सी जो चलेगी विंड्स, तो डेड एरिया जो क्लाउड्स होंगे वो एक हाइट तक जा पाएंगे. तो दिस एरिया रिसीव द रेनफॉल, इस वेस्टर्न साइड में रेनफॉल हो जाएगी और दिस पार्ट इज द ड्राउट, ये सूखा रहेगा. ये वाला एरिया जो है वेस्टर्न घाट्स का. तो महाराष्ट्र में यू नो सम एरिया रिसीव द ड्राउट ड्यूरिंग द रेनी सीजन आल्सो. बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती महाराष्ट्र, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स जो है, तो वेस्टर्न घाट्स की हाइट लाइक दिस है, ऐसे हाइट है. तो दिस एरिया रिसीव द रेनफॉल और दिस वन इज द ड्राउट. ये वाला बैक साइड होगा और ड्राउट हो जाएगा. तो दिस सिनेरियो इन ज्योग्राफी नोन एज द रेन शैडो. इसको क्या बोलते हैं? रेन शैडो बोलते हैं. रेन शैडो एरिया. ओके, दिस इज नोन एज द रेन शैडो, यानी रेन की शेड बन रही है इधर. ओके, दिस इज नोन एज द रेन शैडो. ये वाला एरिया ड्राउट हो जाएगा और दिस एरिया रिसीव द रेनफॉल. तो ये भी आपको एक रेन शैडो एरिया गिवन इन योर बुक. तो वेस्टर्न घाट्स में जो रेनफॉल होती है अरेबियन सी, दिस is known as the Bay of Bengal. This consumes the moisture from Bay of Bengal also. Or there is the three mountain located. It is given in your physical map. That is the Garo, Kasi, Jainti. These are the three mountains located. Garo, Kasi, Jainti. I hope I was given in your map also this question. Yes, sir. PT1. I hope याद तक. Garo, Kasi, Jainti है बेटा. Okay. अब गारो काशी जयंती का जो एरिया है विच टाइप ऑफ लाइक कि वन माउंटेन लाइक दिस, अनदर वन माउंटेन लाइक दिस और अनदर माउंटेन लाइक दिस. तो इट क्रिएट द ए सच टाइप ऑफ कॉनिकल शेप. सच टाइप ऑफ कॉनिकल शेप, ऐसा कॉनिकल शेप बन जाता है. ओके, थ्री साइड्स सराउंडेड बाय माउंटेन, थ्री साइड से सराउंडेड है माउंटेन से. तो व्हेन अ क्लाउड्स में बी इंटर्ड इनसाइड दिस माउंटेन, इस माउंटेन के अंदर जब क्लाउड्स चले जाते हैं तो इसकी हाइट जो यू नो क्लाउड्स राइज अप नहीं हो पाते, क्योंकि क्लाउड्स वेट की वजह से राइज अप नहीं होंगे. अगर उनको राइज अप होना है तो उनको अपना वेट डिक्रीज करना है. और वेट डिक्रीज कैसे होगा क्लाउड्स का? व्हेन अ रेनफॉल में बी स्टार्ट, जब रेनफॉल होगी. तो दिस एरिया रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल. इस वजह से ये जो थ्री माउंटेन है इस एरिया के अंदर वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होती है. और वो समटाइम प्लेस में भी चेंज, जैसे चित्तौड़ है तो समटाइम में बी हाईएस्ट रेनफॉल इन बस्सी और समटाइम में बी इन चित्तौड़, प्लेस में भी चेंज बट डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़ है. तो दिस एरिया रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड. और
दिस कभी होती है वो चेरापुंजी और कभी होती है मासिनराम, दैट इज द नेम ऑफ प्लेस, ओके, वो पास में 5-10 किलोमीटर का ज्यादा डिस्टेंस में। तो दिस एरिया रिसीव द, दैट्स व्हाई दिस एरिया रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ द वर्ल्ड, किससे, बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी मर्ज इनसाइड द नॉर्दर्न एरिया, इस जगह मर्ज होगी वो बीआर वाले एरिया में, यहाँ पे दोनों मॉनसून मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। फिर ये मॉनसून रिटर्न होता है, क्यों, ड्यू टू द परमानेंट ट्रेड विंड्स के डायरेक्शन में ये मूव करता है। तो राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, दिस एरिया रिसीव द रेनफॉल थ्रू द बे ऑफ बंगाल, नॉट अरेबियन सी। हमारे यहाँ जो रेनफॉल होगी इट ओकर ड्यू टू द बे ऑफ बंगाल, नॉट अरेबियन सी। हमारे यहाँ जो रेनफॉल अभी ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगा वाक्य बेटा, तो देखना कभी भी मैप में दिस एरिया रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे ज्यादा रेनफॉल इसमें होगी। फिर यहाँ पे बिहार में थोड़ी उससे कम होगी, लेस देन होगी, ओके, रेनफॉल। फिर दिस एरिया रिसीव द मीडियम रेनफॉल, और ये वाला पार्ट क्या होगा, ड्राउट हो जाएगा, सूखा रहेगा, डेजर्ट। व्हाई, क्योंकि बेटा ये इसलिए डेजर्ट रहता है क्योंकि रेनफॉल जो मॉइस्चर है खत्म होता जाएगा क्लाउड्स का, क्योंकि लैंड पे मूव कर रहे हैं, तो दे कांट कंज्यूम द मॉइस्चर। लैंड पे जो विंड मूव कर रही है वो मॉइस्चर को कंज्यूम नहीं कर सकती, तो दैट्स व्हाई दिस एरिया रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल। अभी भी इंडिया में कई हाईएस्ट रेनफॉल होती है, दैट हैपेंस इन आसाम और बिहार और दैट साइड। लेट ऑन बिहार में लेस देन द ईस्टर्न पार्ट, उससे कम होगी, फिर यहाँ कम होगी, और दिस एरिया इज द ड्राउट। हमेशा जैसलमेर, यू नो, बाड़मेर, बीकानेर, दैट एरिया रिसीव द लेस रेनफॉल, 50 सेंटीमीटर, 50 एवरेज रेनफॉल आते हैं। That's why this area is the desert part। इस वजह से जो कोई भी कॉन्टिनेंट है, कोई भी कंट्री है, तो उसके वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट इसलिए मिलते हैं। मोस्ट ऑफ डेजर्ट आर लोकेटेड वेस्टर्न पार्ट ऑफ एनी कंट्री और कॉन्टिनेंट। एक रीजन तो है विंड्स, ओके, ट्रेड विंड एक उसका रीजन है। सेकंड रीजन है कि करंट। करंट क्यों है, क्योंकि डेजर्ट क्यों मिलते हैं इन वेस्टर्न पार्ट, तो करंट आल्सो वन रीजन। अब ये इट इज नॉट गिवन इन योर सिलेबस, दैट्स व्हाई नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। जब फ्री टाइम होगा तो मैं बताऊंगा कि करंट से क्यों होते हैं। तो दिस इज द एरिया व्हिच रिसीव द रेनफॉल। तो दिस इज नोन एज द ऑनसेट मॉनसून। एडवांस मॉनसून होता है, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। क्यों डिवाइड होता है, ड्यू टू द अनाइमुडी माउंटेन, अनाइमुडी माउंटेन की वजह से होता है, और व्हिच एरिया रिसीव द रेनफॉल, ये आपके डिटेल्स गिवन है, ओके। अब कैसी रेनफॉल होती है रेनी सीजन में, you know there is the break between the rainfall, that is known as the monsoon break, जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं। एक कभी 10 डेज तक रेनफॉल हो गई, 5 डेज तक कुछ नहीं होगा, फिर रेनफॉल हो जाएगी। तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑनसेट मॉनसून, that is known as the साउथ वेस्ट मॉनसून, ओके। अब सीधा साउथ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, बेटा समझ में तो आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम डिस्कस करेंगे साउथ ईस्ट मॉनसून, ओके। अब साउथ सॉरी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब मॉनसून रिटर्न हो रहा है बेटा, क्यों रिटर्न हो रहा है, क्योंकि सन सितंबर मंथ में कहाँ चला जाता है, इक्वेटर पे। सन सितंबर मंथ में कहाँ चला जाएगा, बिलो द इंडिया, इक्वेटर पे। जब इक्वेटर पे जाएगा सन, तो प्रेशर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इक्वेटर पे। तो लो प्रेशर रहेगा इक्वेटर पे और हाई प्रेशर रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो इट मींस विंड मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द इक्वेटर साइड, दैट्स व्हाई विंड मूव करना स्टार्ट हो जाएगी ऐसे। ओके सी, अब ये रिट्रेटिंग मॉनसून है, दैट इज नोन एज द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ओके। अब ये जो विंड मूव कर रही है फ्रॉम लैंड टू लैंड, तो इस एरिया में रेनफॉल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज सच विंड जो ब्लो हो रही है, दे कांट कंज्यूम द वाटर फ्रॉम द लैंड पार्ट। टू लैंड पे इतना वाटर रिसोर्सेस है नहीं जहां से वाटर कंज्यूम हो, तो दिस इज नोन एज द ड्राई विंड, ये ड्राई विंड होगी, ओके। और दैट इंडिकेट द विंटर सीजन, जैसे कि अभी जो मंथ है ना, दैट इज टाइम ऑफ द रिट्रेटिंग मॉनसून। तो अभी क्या होता है कि क्लाउड्स रिटर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लाउड्स रिटर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द अरेबियन सी।
तो दिस इज नोन एज द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून और दिस एरिया इज द ड्राई विंड होती है, कोल्ड विंड होना स्टार्ट हो जाती है। बट दोज विंड फ्लो फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल से जो विंड्स चलती है बेटा, तो दिस विंड कंज्यूम द मॉइस्चर, क्योंकि ये तो किससे चल रही है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ बहुत ज्यादा वाटर बॉडीज है, तो दिस विल कंटेन द मॉइस्चर, ये विंड्स क्या करेगी, मॉइस्चर को कंटेन कर लेगी। और द व्हेन दे स्ट्रिक विद द कोस्टल एरिया, जब इस कोस्टल एरिया से ये टकराएगी तो इस कोस्टल एरिया में इन द मंथ ऑफ नवंबर और अक्टूबर, अक्टूबर एंड नवंबर, सच एरिया फेस द साइक्लोन्स, यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं और रेनफॉल होती है। इसलिए आपने देखा होगा हैदराबाद के अंदर अभी 20 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है विद इन द 20 और 25 डेज बिफोर, 20 सेंटीमीटर विद इन 1 डे इन हैदराबाद। तो दिस एरिया रिसीव द रेनफॉल, जो 4 स्टेट है, वेस्ट बंगाल, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ओके, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो दिस आर द 4 स्टेट which receive the rainfall through the retreating monsoon, जो मॉनसून रिटर्न होता है उनसे 4 स्टेट रेनफॉल रिसीव करते हैं, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो दिस इज नोन एज द बेटा रिट्रेटिंग मॉनसून। रिजल्ट क्या है, साइक्लोन, किस जगह, इन द ईस्टर्न कोस्टल एरिया, जिसको हम कोरोमंडल बोल सकते हैं। दिस एरिया रिसीव द रेनफॉल थ्रू द रिट्रेटिंग मॉनसून। तो साउथ वेस्ट मॉनसून एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बोथ टॉपिक आर कंप्लीटेड। अब यू नो, एक होता है कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मॉनसून क्लाउड्स रिटर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लाउड्स रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे इन द मॉनसून ऑफ, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो मॉनसून क्या बेटा, क्लाउड्स रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो यू नो अर्ली टाइम जो हमारे ऊपर सन हीट आती है ना, सन रेज, तो क्लाउड्स में भी कंज्यूम द सन हीट, तो इतनी ज्यादा सन हीट फील नहीं होती फ्रॉम द जुलाई टू सितंबर तक हमें। बट व्हेन द क्लाउड्स में भी, स्काई में भी क्लियर फ्रॉम द क्लाउड्स, तो सन की डायरेक्ट रेज क्या होगी, डायरेक्ट हमारे इस पे सिर पे आएगी, डायरेक्ट हमारे ह्यूमन बॉडीज पे पड़ेगी सन की डायरेक्ट रेज। तो डेट इज नोन एज द, जो अक्टूबर मंथ में जो हमें हीट फील होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर फील होता है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द अक्टूबर हीट, उसको अक्टूबर हीट कहा जाता है। अक्टूबर मंथ में जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि क्लाउड्स निकल जाते हैं अक्टूबर मंथ में, तो दिस इज नोन एज द अक्टूबर हीट। कभी रेनी सीजन में देखना आप स्काई ब्लू कलर में नजर आएगा जिसमें बहुत सारे व्हाइट क्लाउड्स नजर आएंगे, बट अभी पूरी स्काई इज द फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं है, दैट इज नोन एज द अक्टूबर हीट। ओके, अब आ जाते हैं हम 4th सीजन। तो 4 जो सीजन होते हैं, यू नो वेरी वेल कि कौन कौन से सीजन इंडिया के अंदर है, जो आपको पता है। टेम्परेचर स्टडी आप डिस्कस कर लेना, मैं जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस मंथ में ऐसा होता है, इन विच वेदर। ओके, मैंगो सावर, व्हाट इज द मैंगो सावर, यू नो इन केरला। केरला एक ऐसा है जो बेटा ईस्टर्न कोस्टल एरिया पे लोकेटेड है। ओके, इट इज लोकेटेड केरला। तो दिस एरिया रिसीव द रेनफॉल एट द बिगिनिंग ऑफ जून मंथ, यहाँ पे जून पे इनमें रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाती है इन साइड द केरला, क्योंकि मॉनसून 15 to 20 डे लेता है यहाँ तक आने में। तो केरला एट ए बिगिनिंग ऑफ जून रिसीव द रेनफॉल, और दिस रेनफॉल इज प्लेंटीफुल फॉर द मैंगो रिपन, जो आम पकते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। दैट रेनफॉल इज प्लेंटीफुल फॉर द मैंगो रिपन, और दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द मैंगो